beautiful and green campus. Starting with this event, I would like to welcome our guest, respected Divya Pandey ma'am. She will be joining us soon through Zoom online. Our campus director, sir, Dr. Sandeep Bhatt, sir, Dr. Brijen Shukla, sir, our administrative head in charge, and I would like to welcome all our bright future of India from CM Rice Government Higher Secondary School, Sadra, and respected Principal Ma'am Sudha Mishra ji. Thank you so much for joining us today, and I welcome you all on behalf of Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication of Rewa campus. So starting with this event, I would like to welcome our guests and our dignitaries to lighten the lamp in front of Goddess Saraswati. Our traditional is lighting lamp, starting with our Goddess Saraswati lighting lamp ceremony with a traditional auspicious gesture of symbolizing knowledge, wisdom, and enlightenment. I would also like to invite our faculty members for lighting lamp. They also can join. Respected Principal Ma'am, I also invite you for lamping ceremony. And faculty members and our students. Now you can please take your seats. I would like to invite our campus director, sir, Dr. Sandeep Bhatt, sir, and administrative head, Dr. Vijay Shukla, sir, to kindly come up on the stage and join us for this International Media Talk event. Thank you so much, sir. First of all, let me introduce our new tradition in the field of journalism and communication that our college is about to start international talks and conferences with our senior journalists who are performing outstanding in all over the world. To continue this series, I would like to invite our campus director, sir, Dr. Sandeep Bhatt, sir, to address our students and express his initiative towards the international event. Dr. Sandeep Bhatt, sir. तरुण सर प्लीज दिव्या मैम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वो भी हमारे इस इवेंट को इसमें ज्वाइन कर सके और इसका पार्ट बन सके थैंक यू
हेलो मैडम, वीडियो ऑन कर रहे हैं मैडम। There is a little bit of delay in the program. मैडम अनम्यूट कर लें अपने आप को, आवाज नहीं आ रही है। अपना फोन एडिट कर लेता हूं। हरी सर, आपको मेरी आवाज? On this special occasion, an international expert series talk, I welcome you all on behalf of Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Viva Campus, respected administrative officer of this campus, my dear faculty members, respected principals of CM Rise School Sagra, departments, students of this campus, and the students of CM Rise Sagra School. Since lots of students have come to our campus for academic visit as well as for the career counseling session, so it will be a wonderful experience to listen an international expert who is having more than 15 to 17 years of experience in the across media platforms, electronic media, radio, print, as well as now in journalism, now in digital platforms. Communication in every aspect of our life is essential for the human beings, and as we know that now we are living after the information revolution. In that era, where we are connected through the different platforms, round the clock, 24/7 environment, it becomes essential for the media and communication student, journalism student especially, to understand what are the requirements to be a part of good media organization, how to work in an international organization where different kind of standards are followed. Apart from that, being a journalism and media and communication student, one must know what are the recruitment processes in the international organization and what may be the other ways for us being a journalism and media and communication student as career path in our near future. So I think this will be a wonderful experience. We have taken an initiative to brought some international experts for our students here, exclusively, lively, only for our students, so that they can enlighten and enrich our student through their experience in different media. So I hope Divyaji has long experience in different media organizations. Now she is working in China Media Group and she is posted in Beijing now. I requested her 2-3 days back, and she gave her consent that she will be having an interaction with the students. She will be happy to have interaction with the media and journalism communication students. So formally, I again thank you, Divyaji, that you have given us your precious time, and I will also request you to have this talk maximum in Hindi, because our student belongs from the Hindi and English medium both, but it will be convenient for them to have this interaction in Hindi most. So I will request you again that please bring your talk, please keep your talk in mostly in Hindi,
so that they can understand, they can grab the lecture or interaction betterly. And also, apart from my, on the side of my students, I will also request you to respond on their queries if they are having any. Later on, after your talk, they will have some queries. They will, one of our faculty, respected faculty member will raise their questions. And if you have time, you can also respond to them. So thank you. Thank you. Now I will again hand over this podium to Sudhanshu Misraji. Thank you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir, for taking this initiative. So let me introduce our important guest of this noon. Today we are blessed to have our amazing, fabulous and courageous woman as a journalist, Divya Pandey ma'am. She is joining us virtually from Beijing, China. She is having experience in media more than 15 years on several communication platforms like print, electronic, digital, radio communication platforms. She is having wonderful command on science communication. Oh, she is perfect example of art and science in media background. She will be covering several topics on media standards and working, how international media exposure is important for media students, most important, women in media organization, and what are the challenges usually women face. Media standards ensure that content across platform accurate, falseness, ethical relevant, and other information. So I welcome you, ma'am, on the behalf of Makhanlal Chaturvedi University, Rewa, Madhya Pradesh, India, to talking about TV standards, media standards, and digital and social standards. Thank you so much, ma'am. Now, Divya Pandey, ma'am. Sir, please check. Mute तो नहीं है. जी सर. Divya ma'am, it is audible. सर प्लीज चेक, अगर माइक म्यूट है तो प्लीज उसको अनम्यूट कर दीजिए. मुझे तो आ रही है आवाज. आप बोल सकते हैं दिव्या जी, बोलिए आप. सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ. तो सभी को मेरा नमस्कार. मेरा नाम दिव्या है और मैं भारत में उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और मैं लगभग 2010 से 2016 तक मैंने इंडियन मीडिया के साथ काम किया और कुछ टाइम मैंने साइंस कम्युनिकेशन में काम करने के बाद
और इस समय मैं चाइना मीडिया ग्रुप में हूँ एज अ फॉरेन एक्सपर्ट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह का जो ये इवेंट है, और सबसे पहले तो मैं एमसीयू को बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बात करने के लिए आमंत्रित किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों के काम आएंगे, और मैं चाहूंगी कि मेरे अनुभव जो है अधिक से अधिक मैं साझा कर सकूं जितने भी अभी मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, और उनकी जो भी क्वेरीज हैं उनको आंसर कर पाऊं। मैं सुन नहीं पा रही हूँ कुछ भी, किसी की भी आवाज। दिव्या जी, आप शुरुआत में अपने कामकाज के बारे में बताएं, कैसे आपका ये काम है, और उसके बाद में बच्चे बाद में आपसे बात करेंगे। तो ये चाइना मीडिया ग्रुप एक चीन सरकार की एक संस्था है, और यहाँ पे कई भाषाओं की मीडिया काम करती है, कई भाषाओं के लिए जो संबंधित भाषा का संबंधित भाषा उस देश के लिए काम करती है। सो मैं चाइना मीडिया ग्रुप के हिंदी विभाग के लिए काम करती हूँ, और इसके अलावा 68 और ग्रुप हैं, 68 और डिपार्टमेंट हैं जो अलग अलग भाषाओं के साथ ये चाइना मीडिया ग्रुप के लिए काम करते हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये होगी बच्चों के जानने के लिए कि चाइना मीडिया ग्रुप में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे जितने भी चाइनीज लोग हैं वो सभी, जैसे चाइना मीडिया ग्रुप में जो हिंदी डिपार्टमेंट है वो जितने भी चाइनीज लोग हैं सभी लोगों को हिंदी आती है। एंड वी आर 3 फॉरेन एक्सपर्ट्स हियर फ्रॉम इंडिया। सो एक इंडियन होने के नाते मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होती है जब मैं किसी चाइनीज सिटीजन को मैं हिंदी में बात करते हुए देखती हूँ, और उस कंट्री से रिलेटेड इशू पे चर्चा करते हुए देखती हूँ, तो एक थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे आता है। हम चाइना मीडिया ग्रुप में काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया से एक जुड़ाव हमेशा बना हुआ है, इंडिया की खबरें, इंडिया के इश्यूज के साथ, तो वो हमेशा एक कनेक्शन बना रहता है जो चाइना और इंडिया के बीच हम लोग एक कह सकते हैं एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। और उसके अलावा ये थोड़ा सा मेन स्ट्रीम मीडिया से थोड़ा सा हटके है, प्योर मीडिया की तरह काम नहीं होता है, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकली यहाँ पे चीजें ज्यादा रहती हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो समय के साथ जैसे मैंने यहाँ पे जाना, जियोपॉलिटिक्स पे हर किसी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, या तथ्यों पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं होती है, बट बाय द टाइम जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको समझ में आता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अपने आप में, और सीखते सीखते आप करने लगते हैं। और जियोपॉलिटिक्स और जितनी भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं, शायद इंडिया में हम जो जितने भी लोग रहते हैं हमारी स्पेसिफिक बीट होती है, हम आर्ट एंड कल्चर, सॉफ्ट स्टोरीज, हेल्थ एंड पॉलिटिकल, इस तरह की बीट्स पे अपना काम करते हैं, हमारा एक स्पेसिफिक जोन होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको लगभग सभी सब्जेक्ट्स के साथ थरो होना होता है, और सभी सब्जेक्ट्स की ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी होती है। सो इंडियन मीडिया के साथ काम करने के बाद जब मैं अपनी जर्नी यहाँ पे देखती हूँ चाइना मीडिया ग्रुप में, तो मुझे एक काफी चेंज नजर आता है। चेंज एज इन वर्क कल्चर इंडिया से काफी अलग है, जो मैंने इंडियन मीडिया में देखा, और यहाँ पे काम सेम है लेकिन काम करने के तरीके अलग हैं। तो जब आप किसी दूसरी कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं तो ये भी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है अपने आप में, क्योंकि आपने 8-10 साल अपनी कंट्री में काम किया है, एक स्पेसिफिक वर्क पैटर्न में काम किया है। यहाँ का वर्क पैटर्न, वर्क कल्चर थोड़ा अलग है इंडिया से। सो इनिशियल डेज काफी चैलेंजिंग होने के बाद अब ये मेरा यहाँ पे तीसरा साल है, और मैं देखती हूँ अपने आप को कि अभी समहाउ
चीजें समझ में आने लगी हैं और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, इस तरह के इवेंट्स के थ्रू भी हम बड़ी अपनी ग्रोथ और अपनी जो समझ है उसको थोड़ा सा एक चेकआउट करने का मौका मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो एक्सपीरियंस है ये किसी के लिए भी किसी भी मीडिया पर्सन के लिए बहुत फ्रूटफुल एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिस तरह का मेरा एक्सपीरियंस है। और इफ आपके पास एक पॉजिटिव अप्रोच है और जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं आपको उनको ग्रैब करना आता है और लर्निंग आपकी स्पिरिट है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो भी नए बच्चे आ रहे हैं मास मीडिया में, तो एक बंधे बनाए एक पैटर्न पे काम ना करके थोड़ा सा लीक से अलग हटके अगर वो सोचते हैं तो बहुत अच्छा वो कर सकते हैं अपने लिए और अपने अपनी कंट्री को, अपने यूनिवर्सिटी को एक प्राउड होने का मौका दे सकते हैं। दिव्या जी, आपने चूंकि दिल्ली में भी काम किया है और अब आप बीजिंग में हैं, तो थोड़ा सा ये अनुभव बताइए कि वहाँ के जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ से अगर हम बात करते हैं तो क्या डिफरेंस आपको दिखता है दिल्ली के स्टूडियोज में, दिल्ली के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में और किसी दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लगभग काम करने के तरीके में चेंजेस हैं, काम करने के तरीके बहुत अलग हैं। जितना मैं कंपेयर नहीं करूंगी, लेकिन वो एक अलग तरीका है, ये एक अलग तरीका है। यहाँ के लोग थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। मैं अगर कहीं और की बात ना करके मैं सिर्फ अगर चीन की बात करूं तो यहाँ के लोग ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं और बहुत सारी टेक्निकलिटीज जब हम देखते हैं, क्योंकि हम लोग उन सारी चीजों में नहीं जाते हैं, बट मुझे लगता है कि जब हम एक अलग जैसे मीडिया के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक मैं कोई स्क्रिप्ट लिखने वाला है, कोई वीडियो एडिटर है, कोई कैमरा पर्सन है, तो जब क्योंकि हम लोग सभी लोगों के साथ काम करते हैं और जब मैं यहाँ पे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत एक अलग तरीके का प्रोफेशनलिज्म है जो कि इंडिया में भी है, लेकिन एक अलग तरीके का मैं माहौल देखती हूँ यहाँ पे। और थोड़ा सा मैं ये भी देखती हूँ कि वर्क आवर्स कम है और एम्प्लॉयज को अच्छी, मीडिया की बात करूँ तो अच्छी छुट्टियां मिलती हैं और बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ी सी जो ब्रेक टाइम होता है हम लोगों का इंडिया में, उससे ज्यादा अच्छा एक ब्रेक टाइम ऑल कुल मिला के देखा जाए तो एक आप काम कर सकते हैं जहां आप समय गुजार सकते और जहां पे आप एक लंबी पारी का सोचते हैं लर्निंग के पर्पज से और कुछ कंट्रीब्यूट करने के पर्पज से, तो मैं ये कहूंगी कि आप एक बार जरूर एक इंटरनेशनली एक एक्सपोजर लेने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि आपके पास अगर अपनी कंट्री का एक्सपीरियंस है और आप दूसरी कंट्री में, तो आपको बेशक एक नया एक्सपोजर, एक नए वर्क कल्चर को जानने का भी मौका मिलेगा। ओके दिव्या जी, एक चीज जो आज हमारे पास में बच्चे हैं 12वीं के जी, 12वीं के मुकाम के बाद आगे अपना करियर देखना चाहेंगे कि कहाँ, आज हमारे पास में इनके लिए करियर काउंसलिंग का भी एक सेशन है, तो अच्छा है कि आप हमारे साथ हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज में ये 12वीं के बाद अगर कुछ करना चाहें तो क्या आप इनको राय देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए बच्चों को? कम्युनिकेशन स्टडीज में अभी तो बहुत सारे पहले के टाइम पे जब हम बात करें तो पहले के टाइम पे बैचलर इन जर्नलिज्म, मास्टर इन जर्नलिज्म और कुछ डिप्लोमा हुआ करते थे, बट अभी देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तेजी से बूम कर रहा है और इसमें
सेट नियम नहीं है। कल के दिन कुछ नए तरीके का मीडिया में कुछ नया ट्रेंड चल पड़ेगा। जैसे कि अभी आप देखिए सोशल मीडिया अपने बूम पे है। सोशल मीडिया में आप हर कोई अपनी बात रख सकता है, तो किसी को नहीं पता कि आने वाले समय कम्युनिकेशन के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए किस तरह का रहेगा। तो आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी रखिए और जितना ज्यादा हो सके उतना आप इंटरनेशनल इश्यूज को पढ़िए, इंटरनेशनल इश्यूज को समझिए। जितना ज्यादा आपकी समझ उसके साथ होगी, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कुछ अच्छे अखबार अगर आप पढ़ते हैं तो कुछ एक दो हिंदी के अखबार और एक दो इंग्लिश के अखबार अगर आप पढ़ना कंटिन्यू रखते हैं डे टू डे लाइफ में, और साथ के साथ आप अपनी स्टडीज भी करते हैं, तो आगे आप एक समय के बाद पाएंगे कि आपके पास एक अच्छा नॉलेज है और आप कहीं पे भी काम करने के लिए जाएंगे तो आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी इनिशियली। आपका साइंस कम्युनिकेशन का भी लंबा अनुभव रहा है। कम्युनिकेशन जो बच्चे पढ़ते हैं, कई बार हमारे यहाँ साइंस कम्युनिकेशन की बात थोड़ा कम होती है देश दुनिया में और हमारे देश में भी। साइंस कम्युनिकेशन का स्कोप बहुत है, तो बच्चों को थोड़ा सा इस बारे में भी आप बताइए कि साइंस कम्युनिकेशन का क्या एरिया है और उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं करियर के लिहाज से। साइंस जर्नलिज्म, आपने सही कहा, साइंस जर्नलिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे बहुत कम बात की जाती है और इंडिया में अभी इसका स्कोप बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता है। अगर हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को छोड़ दे तो सिर्फ एक ये विभाग है भारत सरकार के अंडर में जो साइंस जर्नलिज्म के लिए कुछ काम कर रहा है। इसके अलावा प्राइवेट में कहीं कुछ और दिखाई नहीं देता है। मैंने जो साइंस कम्युनिकेशन में मैंने 3 साल दिए और ये वो टाइम था जब मैंने साइंस कम्युनिकेशन से थोड़ा सा मूव होके साइंस जर्नलिज्म की तरफ अपना करियर शेप करने की कोशिश की थी। सो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन साइंस में है, मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे इसका एक फायदा मिला। लेटर मैंने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया, सो मुझे दोनों का फायदा मिला। और बीइंग अ साइंस स्टूडेंट प्लस मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट, मैंने साइंस कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई किया और मैं सेलेक्ट हुई वहां पे। और मैंने साइंस एक्सप्रेस, जो कि साइंस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट और इंडियन रेलवे का एक कोलैबोरेशन था, जो विक्रम ए साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद जिसको रन करता था। सो ये एक बहुत सक्सेसफुल वेंचर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। उन्होंने सक्सेसफुली साइंस एक्सप्रेस के 8 फेजेस कराए और इसका इम्पैक्ट साइंस जर्नलिज्म का इम्पैक्ट, क्योंकि अभी डिमांड में है। अभी अगर हम बात करें, मैं अगर साइंस एक्सप्रेस की ही बात करूं तो साइंस एक्सप्रेस का जो मैंने पहला फेज किया था वो साइंस एक्सप्रेस बायोडाइवर्सिटी स्पेशल था। सो बायोडाइवर्सिटी, अभी हम ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। देन उसके बाद साइंस एक्सप्रेस क्लाइमेट एक्शन स्पेशल, जो कि अभी हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है अलग अलग देशों में और सभी देश जो है जलवायु सम्मेलन करते हैं और एक मत होते हैं। तो ये एक डिमांडिंग सब्जेक्ट है आने वाले फ्यूचर में। तो अगर आप जर्नलिज्म के साथ ही आप साइंस पढ़ते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, सपोज जो भी आपने कहा कि जो बच्चे हैं 12th के बच्चे हैं, अगर साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं तो वो आगे साइंस में ही पढ़ते हुए उसके बाद वो अपना करियर जो है वो आगे जर्नलिज्म करके और साइंस जर्नलिज्म में अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर इस तरह का एक अप्रोच रहती है कि हम मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और साइंस के भी स्टूडेंट हैं, तो इन फ्यूचर आपके पास कई सारे ऑप्शन रहेंगे जॉब के लिए, लर्निंग के लिए। तो आप अपना जितने भी स्किल्स हैं उन पे आप काम कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन प्लस साइंस जर्नलिज्म, साइंस जर्नल्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है विज्ञान प्रसार, जो विज्ञान प्रसार हर साल बहुत सारे इस तरह के स्कॉलरशिप्स भी देता है। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनकी वेबसाइट है, वहां पे जाके रिलेटेड स्कॉलरशिप के लिए आप
अप्लाई कर सकते हैं। रजत जयंती फेलोशिप जिसके लिए मैंने भी अप्लाई किया था, ये सारी वो चीजें हैं जब आप आगे आगे जाएंगे और आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। सो कम्युनिकेशन प्लस साइंस जर्नलिज्म की तरफ आप अगर चाहें तो फॉर श्योर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। दिव्या जी, टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी लिमिटेशन है, ये मेरे ख्याल से ये लिंक अभी खत्म हो जाएगी। हमारी टेक्निकल टीम इस पे काम कर रही है, दोबारा हम कर सकें। अभी आपका एक बतौर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट इस तरह से असाइनमेंट मिलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं आपको कुछ स्पेशल असाइनमेंट मिला हो, उसके अनुभव को हम सुनना चाहेंगे। मैं अपनी टेक्निकल टीम से